دوستو آپ جانتے ہیں کہ کسی نے جب آپ کو چھوڑ دیا ہو تو اچانک آپ کو شدت سے یاد کرنا شروع کر دیتا ہے، اور یہ یاد آنا یقین کریں بالکل عام بات نہیں۔ یہ نہ تو اس کی منتیں کرنے سے ہوتا ہے، نہ اس کے پیچھے بھاگنے سے، نہ سوشل میڈیا پر اداس پوسٹیں ڈالنے سے، اور نہ ہی انہیں جلانے کے لیے دکھاوے کے لیے کچھ کرنے سے ہوتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ لوگوں کے دل میں جگہ بنانا یا ان کو اپنی یاد دلانا، اس کے لیے صرف ایک چھوٹی سی مگر انتہائی طاقتور چیز کی ضرورت ہوتی ہے، اور جب آپ یہ کرتے تو آپ دیکھیں گے کہ ایک عجیب سا جادو کام کرتا ہے۔ وہ شخص جو آپ کو چھوڑ گیا تھا اچانک آپ کے بارے میں سوچنے لگتا ہے، آپ کی سوشل میڈیا پروفائل چیک کرنے لگتا ہے۔ کچھ لوگ تو واپس آ کر پوچھتے ہیں کیا ہم بات کر سکتے ہیں، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب انہیں احساس ہوتا ہے کہ انہوں نے کیا کھو دیا تو آپ کو اس وقت بالکل فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ تب آپ خود اپنی بہترین شکل میں ہوں گے، اپنے اندر طاقتور، پر اعتماد اور مکمل خوشی کے ساتھ۔ اور یہی وہ لمحہ ہے جب اصل کھیل شروع ہوتا ہے، کیونکہ آپ کی غیر موجودگی، آپ کی خاموش طاقت وہی چیز ہے جو انہیں سب سے زیادہ پچھتانے پر مجبور کر دے گی۔ آپ کے سامنے اب موقع ہے کہ نہ صرف خود کو بہتر بنائیں بلکہ ایک ایسا اثر چھوڑے جو انہیں ہمیشہ یاد رہے۔ تو اگر آپ واقعات جاننا چاہتے ہیں کہ یہ طاقتور قدم کیا ہے اور کیسے ایک بار کرنے سے سب کچھ بدل سکتا ہے، تو بس یہی وقت ہے، اور اگلا مرحلہ جاننے کے لیے آئیے ہم قدم پہ قدم اس راز کو کھولیں گے۔ پہلا قدم، اور شاید سب سے مشکل، آپ اچانک غائب ہو جائیں، نہ تو توجہ کے لیے، نہ اس کے ساتھ کوئی دماغی کھیل کھیلنے کے لیے، بلکہ حقیقت میں ان کی زندگی سے مکمل طور پر غائب ہو جائے۔ کوئی کال نہیں، کوئی میسج نہیں، کوئی کمنٹ نہیں، ان کی پوسٹیں یا سٹوریز نہیں دیکھنا، دوستوں کے ذریعے معلومات لینے کی کوشش نہیں کرنا، کچھ بھی نہیں، بالکل خاموشی۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس طرح تو وہ مجھے بھول جائیں گے، نہیں، حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ جب آپ ہمیشہ وہاں ہوتے ہیں، ہمیشہ دستیاب ہوتے ہیں، ہمیشہ چیک ان کرتے ہیں، تو آپ معمولی ہو جاتے ہیں، بالکل ہوا کی طرح۔ لوگ ہوا کے بارے میں نہیں سوچتے کیونکہ وہ ہمیشہ وہاں ہوتی ہے، حالانکہ سب سے زیادہ ضرورت والی چیز ہے۔ لیکن جب آپ اچانک غائب ہو جاتے ہیں تو دماغ جاگتا ہے، وہ سوچنے لگتے ہیں کہاں گئے، کیوں میسج نہیں کر رہے، کیوں میری اسٹوریز نہیں دیکھ رہے۔ آپ کی غیر موجودگی آپ کی موجودگی سے کہیں زیادہ زور سے بولتی ہے۔ سوچیں جب آپ کے پاس کوئی کھلونا ہوتا ہے اور آپ روزانہ اس سے کھیلتے ہیں تو آپ زیادہ نہیں سوچتے، لیکن اگر وہ کھلونا اچانک چھین لیا جائے تو وہ کھلونا ہی سب کچھ بن جاتا ہے اور آپ کا دماغ اسی کے بارے میں سوچتا رہتا ہے۔ لیکن راز یہ ہے، آپ اس لیے نہیں غائب ہو رہے کہ اسے کچھ محسوس ہو یا اس کو کسی چال کے ذریعے اپنے بارے میں سوچنے پر مجبور کریں۔ آپ نے اس کا چیپٹر ہی کلوز کر دینا ہے۔ آپ غائب ہو رہے ہیں خود کو بہتر کرنے کے لیے، اپنے آپ پر توجہ دیں، کیونکہ چاہے وہ واپس آئیں یا نہ آئیں آپ ٹھیک ہوں گے۔ اور یہی وہ طاقت ہے جو انہیں سب سے زیادہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ یہاں اکثر لوگ سب سے بڑی غلطی کر دیتے ہیں، وہ شخص کی زندگی سے غائب تو ہو جاتے ہیں لیکن ہر کسی کو ہر چیز بتانا شروع کر دیتے ہیں۔ دوستوں کو ہر چھوٹی بڑی تفصیل بتانا، اداس اور غیر واضح پوسٹیں ڈالنا، بار بار ماضی پر بات کرنا، سب کچھ کرتے ہوئے وہ نہیں سمجھتے کہ وہ اپنے ہی ہاتھوں اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ جب بھی آپ ان کے بارے میں بات کرتے ہیں آپ انہیں طاقت دیتے ہیں، آپ انہیں اپنے دماغ میں زندہ رکھتے ہیں، اور جب تک وہ آپ کے دماغ میں زندہ ہے تو دماغ پر کنٹرول اسی کا رہتا ہے، اور آپ خود کو وہاں پھنسائے رکھتے ہیں جہاں سے نکلنا واقعہ مشکل ہوتا ہے۔ اور سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ ان تک پہنچ جاتا ہے، کچھ نہ کچھ دوست بتا ہی دیتے ہیں، اور وہ سوچتے ہیں اچھا وہ ابھی بھی پرواہ کرتے ہیں، وہ مجھے ابھی بھی چاہتے ہیں، اگر میں چاہوں تو کسی بھی وقت اسے دوبارہ استعمال کر سکتا ہوں، میں سمجھ گیا ہوں کہ وہ میرا برا سلوک برداشت کر کے بھی میری بات مانیں گے، میرے قدموں میں رہیں گے۔ اور یہی وہ لمحہ ہے جب آپ اپنی طاقت کھو بیٹھتے ہیں۔ اس لیے یہ سب مت کریں، خاموش رہیں، اپنے آپ پر توجہ دیں اور اپنی زندگی کو اس طرح جیے کہ آپ کی غیر موجودگی سب سے بڑی طاقت بن جائے۔ طاقتور لوگ اس کے بجائے کیا کرتے ہیں، جب کوئی بھی صورتحال کے بارے میں پوچھے تو وہ بس ایک مختصر اور پر اعتماد جواب دیتے ہیں، میں اب دوسری چیزوں پر فوکس کر رہا ہوں، بس کسی کو اضافی وضاحت کی ضرورت نہیں، کسی کو راضی کرنے کی نہیں۔ اور یہی چھوٹی سی بات آپ کی طاقت کو زہر کرتی ہے۔ اگر کوئی کوشش کرے ماضی کو دوبارہ کھولے تو آپ فوری طور پر موضوع بدل دیں، بغیر کسی جذبات کے، بغیر کسی رنجش کے، صرف اپنی زندگی پر فوکس رہے۔ کوئی ڈرامے کی تفصیل مانگے، کوئی غائب ہونے کی تفصیل مانگے، آپ مسکرا کر کہہ دیں سب ٹھیک ہے، میں آگے بڑھ رہا ہوں۔ کوئی وضاحت نہیں، کوئی شکایت نہیں، کوئی جذباتی بات نہیں، کسی بھی گفتگو میں انہیں کوئی جگہ نہ دے۔ یہی وہ فرق ہے جو آپ کو مضبوط بناتا ہے اور انہیں اندر سے ہلا دیتا ہے۔ اب تصور کریں
वो देखते हैं कि आप उनके बारे में नहीं बात कर रहे, न पोस्ट कर रहे हैं, न दिखावा कर रहे हैं, न टूट रहे हैं, तो दिमाग में एक लम्हा आता है जब सब कुछ क्लिक होता है। वेट, वो वाकया ठीक है, वो पहले ही आगे बढ़ रहे हैं। क्या मैंने कुछ खो दिया है? क्या मैंने गलत किया है? यही वो लम्हा है, वो छोटी सी तब्दीली जो पछतावे की शुरुआत करती है। आपकी खामोशी, आपकी गैर मौजूदगी और आपकी खुद एतमादी, ये सब कुछ उसके दिमाग में हलचल पैदा कर देता है। ये वो ताकत है जो किसी को भी हैरान कर सकती है, क्योंकि असल कंट्रोल सिर्फ उसी के पास है जो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की हिम्मत रखता है। और यही वो लम्हा है जब आप वाकया जीत जाते हैं और उन्हें यह एहसास होता है कि जो कुछ खो दिया है वो शायद वापस ना आए। अब जब आप गायब हैं, जब आप बात नहीं कर रहे, जब आप उन्हें नहीं बता रहे, तो आप एक ताकतवर काम करते हैं। आप खुद को बेहतर बनाते हैं। बेहतर होना उनके लिए नहीं बल्कि अपने लिए। अब वक्त है अपनी जिंदगी पर तवज्जो देने का, अपनी खुशी, अपनी तरक्की और अपनी ताकत पर फोकस करने का। वर्जिश करना शुरू करें, अपनी सेहत और जिस्मानी ताकत बढ़ाएं, अपने दिमाग और महारतों को बेहतर बनाएं, वो शौक अपनाएं जो हमेशा से करना चाहते थे, और ऐसे लोगों के साथ वक्त गुजारें जो वाकया आपकी कदर करते हैं। अपने अंदर की खामियों पर काम करें, अपनी खुद एतमादी बढ़ाएं, ज्यादा मुस्कुराएं, ज्यादा हंसें और वो शख्स बने जो आप हमेशा बनना चाहते थे। ये वक्त है अपनी जिंदगी का कंट्रोल संभालने का, अपनी खुशी खुद बनाने का और अपनी जिंदगी को उस अंदाज में जीने का कि कोई भी आपकी कदर कम न कर सके। जब आप खुद को बेहतर बनाते हैं तो ये न सिर्फ आपके लिए तब्दीली लाता है बल्कि वो शख्स जो आपको छोड़ गया वो भी देखता है कि आप वाकया कितने मजबूत, खुश और कामयाब हो चुके हैं। और जादू की बात यह है कि जब आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना शुरू करते हैं, लोग देखते हैं, दोस्त देखते हैं, आप में तब्दीली महसूस करते हैं। आप खुश, मजबूत, पुरएतमाद और खुद पर यकीन रखने वाले लगते हैं। आपकी तवानाई, आपका अंदाज, आपकी मुस्कुराहट, ये सब कुछ एक अलग ही रोशनी पैदा कर देता है जो लोगों को अपनी तरफ खींचती है। और वो शख्स जो आपको छोड़ गया है वो भी ये सब देखता है। शायद एक तस्वीर देखकर, शायद सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट देखकर, शायद किसी दोस्त से सुनकर या इत्तफाक से कहीं मुलाकात हो जाए, वो देखता है कि आप वाकया कितने खुश, पुरएतमाद और मुकम्मल हो गए हैं। वो यकीन नहीं कर पाता कि उसे जो लगता था आप टूट गए होंगे, वाकया ऐसा नहीं हुआ। दिमाग में सोच आती है, ओ नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। वो गमगीन नहीं, वो आगे बढ़ गए हैं, वो बेहतर हो गए हैं, वो पहले से ज्यादा खुश हैं। और यही वो लम्हा है जब पछतावा दिल पर हमला करता है। ये ऐसा महसूस होता है जैसे किसी ने उन्हें एक धक्का दे दिया हो, जैसे करंट लग गया हो, क्योंकि उन्हें एहसास होता है कि जो कुछ खो दिया है वो वापस नहीं आ सकता। यही वो ताकत है, यही वो असर है जो सिर्फ आपकी तरक्की और खुशी से आता है। आपकी कामयाबी, आपकी खुद एतमादी और आपकी गैर मौजूदगी, ये सब मिलकर उसे पछताने पर मजबूर कर देते हैं। और याद रखें, ये सब कुछ आपके लिए है, न कि उनके लिए। आपकी खुशी, आपकी ताकत और आपकी जिंदगी, ये सब आपके कंट्रोल में है। और यही वो जादू है जो सबसे ज्यादा असर रखता है। अब अगला मरहला और शायद सबसे बड़ा इम्तिहान, कुछ वक्त बाद जब आप गायब रहते हैं, जब आप बात नहीं कर रहे, जब वो देखते हैं कि आप वाकया जबरदस्त कर रहे हैं, तो वो राब्ता करते हैं। ये राब्ता कई शक्लों में हो सकता है। शायद एक मैसेज, शायद किसी पुरानी तस्वीर पर लाइक, शायद एक कमेंट, या शायद वो कहीं कह भी दें कि मैं तुम्हें याद कर रहा हूँ। ये छोटे छोटे इशारे, ये सब ब्रेड क्रम्स होते हैं। ये उनकी कोशिश होती है कि ये जांचने की कि आप वापस आएंगे या नहीं। ये सिर्फ छोटे टुकड़े होते हैं, एक तरह का खेल जो वो खेलने की कोशिश कर रहे होते हैं। यहाँ अक्सर लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं, वो इतने पुरजोश हो जाते हैं कि फौरन जवाब दे देते हैं, वो दोबारा दस्तयाब हो जाते हैं और यूं सब ताकत खत्म हो जाती है जो सालों की खामोशी और खुद पर काम करने की ताकत से आपने जमा की थी, वो एक लम्हे में खत्म हो जाती है। अब जब वो कोई मैसेज भेजें, आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। पहला, बिल्कुल जवाब न दें, उन्हें अनरीड छोड़ दें। ये छोटा सा अमल उनके लिए सबसे बड़ा झटका होता है, क्योंकि वो उम्मीद करते हैं कि आप फौरन रद्द अमल दिखाएंगे, जवाब देंगे, लेकिन आपने अपनी ताकत बरकरार रखी। दूसरा, अगर जवाब देना जरूरी हो तो मुख्तसर और गैर दिलचस्पी वाला जवाब दें, मैं ठीक हूँ, शुक्रिया, बस। कोई लंबी बात नहीं, कोई जज्बाती जवाब नहीं, कोई जोश या हलचल नहीं। आप ठंडे, गैर परवाह और मसरूफ रहते हैं। याद रखिए, अगर वो वाकया वापस आना चाहते हैं, याद रखिए, अगर वो वाकया वापस आना चाहते, अगर वो वाकया पछताए होते तो वो अपनी पूरी कोशिश करते, वापस आते, वजाहत करते, माफी मांगते और मेहनत करते। ब्रेड क्रम्ब सिर्फ कबूतर के लिए हैं जो आसानी से आ गए या भाग गए। आप कबूतर नहीं है, आप वो शख्स हैं जो अपनी कदर जानता है, जो अपनी जिंदगी के लिए पुरएतमाद है और जो किसी की छोटी सी कोशिश से अपनी ताकत खोने वाला नहीं। यहाँ असल सबक ये है कि ब्रेड क्रम्ब्स आपके जज्बात को परखने की कोशिश है,
लेकिन आप उनके खेल में नहीं आएंगे। आपने पहले ही खुद को बेहतर बनाया है, आप आगे बढ़ चुके हैं और अब आपकी गैर मौजूदगी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। ये लम्हा सबसे अहम है क्योंकि यही वो जगह है जहाँ आप अपनी ताकत को बरकरार रखते हैं, अपनी खुद एतमादी दिखाते हैं और ये साबित करते हैं कि आपका कंट्रोल सिर्फ आपके पास है। आखिरी कदम और शायद सबसे अहम, आप अपनी जिंदगी ऐसे जिए जैसे आप पहले जीत चुके हो, ना किसी को जिताने के लिए, ना इंतजार करने के लिए कि वो वापस आए, ना कुछ साबित करने के लिए। क्योंकि हकीकत ये है कि आपके पास सब कुछ है, आपके पास खुद आप हैं, अपनी ताकत और अपनी पहचान है, आपका मुस्तकबिल आपके हाथ में है, आपके दोस्त और चाहने वाले आपकी कदर करते हैं और आपके ख्वाब और अहदाफ, एक पूरी जिंदगी आपके सामने है जिसे आप अपनी मर्जी से जीते जा रहे हैं। जब आप इस अंदाज में जिंदगी जीते हैं तो लोग देखते हैं, महसूस करते हैं और मुतासिर होते हैं। ये एक अंदरूनी रोशनी की तरह है जो आपके अंदर से निकलती है। आप मोहताज नहीं, आप बेलौस नहीं, आपने खुद को मुंतखब किया है और यही वो चीज है जो लोगों को सबसे ज्यादा पछतावे में डालती है। अब जो भी होता है वो सिर्फ एक चीज में है, चाहे वो वापस आए या ना आए, आप पहले ही जीत चुके हैं। आपने खुद को मजबूत बनाया, बेहतर बनाया और वो शख्स जो आपको छोड़ गया वो अपनी गलती महसूस करेगा, लेकिन आप मसरूफ होंगे अपनी बेहतरीन जिंदगी जीते हुए, अपने वक्त, अपनी खुशी और अपनी कामयाबी पर फोकस करते हुए। आज के लिए आपका काम बहुत सादा है, बस किसी एक कदम को अपनाएं और इसे रोजमर्रा की आदत बना डालें। खामोश हो जाएं, सोशल मीडिया चेक करना बंद करें, दूसरों को उनके बारे में बात करना बंद करें और हर रोज खुद पर काम करें। जिम जाएं, कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करें, वो शौक अपनाएं जो हमेशा से करना चाहते थे, नई चीजें सीखें, अपने अंदर की ताकत और एतमाद बढ़ाएं। ये करें और दोबारा करें, रोजाना, हफ्ते और महीने, और आप देखेंगे कि आप पहले से ज्यादा मजबूत, खुश और खुद पर यकीन रखने वाले बन चुके हैं। और जो शख्स आपको छोड़ गया था वो सब कुछ देखकर पछताएगा, लेकिन तब भी आपको उसके बारे में फिक्र नहीं करनी चाहिए क्योंकि आप मसरूफ होंगे हैरत अंगेज बनने में, अपनी जिंदगी जीने में, अपने ख्वाब हासिल करने में और अपनी खुशी और खुद एतमादी के साथ आगे बढ़ने में। ये आखिरी और सबसे ताकतवर सबक है। खुद को चुने, अपनी जिंदगी जिए और सबसे बड़ी फतह हासिल करें। चाहे वो वापस आए या ना आए, आप हमेशा जीत चुके हैं। दोस्तों, वीडियो के आखिर में एक अहम बात याद रखें, ये सब तकनीकें और तरीके सिर्फ उस वक्त असर रखती हैं जब आप इन्हें इखलाक और मुस्बत अंदाज में इस्तेमाल करें। किसी को नुकसान पहुंचाने, धोखा देने या जज्बात से खेलने के लिए ये इस्तेमाल ना करें, क्योंकि अगर आपकी सोच मनफी होगी तो नतीजे भी मनफी निकलेंगे। अगर आपकी सोच मुस्बत होगी तो नतीजे भी मुस्बत निकलेंगे। ये सब कुछ सिर्फ आपकी जाती तरक्की, खुद एतमादी और जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए है। याद रखें, मकसद किसी को पछताने या काबू करने का नहीं है, किसी को यह एहसास दिलाने का नहीं है कि वो आपको छोड़ गया है, बल्कि अपने आप को इतना मजबूत, खुश और कामयाब बनाना है कि आपकी जिंदगी में मुस्बत तब्दीली आए और लोग खुद महसूस करें कि उन्होंने गलती की है। जब आप अपनी कदर जानते हैं और आपको इस बात की परवाह नहीं होनी चाहिए कि वो क्या महसूस करते हैं, जब आप अपनी कदर जानते हैं, अपने वक्त और तवानाई को सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं, तो यही सबसे बड़ी ताकत और कामयाबी है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप मजीद ऐसी नफसियाती, खुद एतमादी और जिंदगी बदल देने वाली टिप्स देख सकें। साथ ही वीडियो को लाइक करें ताकि हमें पता चल सके कि आपको ये कंटेंट पसंद आया है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी अपनी जिंदगी में मुस्बत तब्दीली ला सकें। याद रखें, सबसे बड़ी ताकत आपके पास है। ये इल्म और ये इक़दामात आपको बेहतर बनाने के लिए। अपनी जिंदगी के फैसले खुद करें, अपनी खुशी खुद बनाएं और हर दिन अपने आप को बेहतर बनाने के लिए एक छोटा कदम जरूर उठाएं। मैं हूं वारिस कमाल, चैनल वारिस की बात के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपनी बेहतरीन जिंदगी की तरफ कदम बढ़ाएं। आपकी कामयाबी का सफर यहाँ से शुरू होता है। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।